آج شام ایک ایسے شخص کے ذریعے سے آپ کے ساتھ ہم کلام ہونا چاہتا ہوں جسے خدا نے پسند کیا ہے، اور کس طریقے سے پسند کیا ہے یہ خاص بات ہے۔ اور یہ وعدہ جو آپ کو زبور 91 میں ملتا ہے کہ میں اپنی نجات اسے دکھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ پہلے میرے ساتھ پڑھ لیجیے اعمال کی کتاب، اس کا 10واں باب، اس کی اعمال کی کتاب اس کا 10واں باب، اس کی پہلی آیت سے۔ کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا، وہ اس پلٹن کا صوبہ دار تھا جو اتلیانی کہلاتی ہے۔ وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا، اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا۔ اس نے 30 پہر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے، کرنیلیس۔ اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا، خداوند کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچی۔ اب یافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو جو پترس کہلاتا ہے بلوا لے۔ وہ شمعون دباغ کے ہاں مہمان ہے، جس کا گھر سمندر کے کنارے ہے۔ اور جب وہ فرشتہ چلا گیا جس نے اس سے باتیں کی تھیں، تو اس نے 2 نوکروں کو اور ان میں سے جو اس کے پاس حاضر رہا کرتے تھے ایک دیندار سپاہی کو بلایا اور سب باتیں ان سے بیان کر کے انہیں یافا میں بھیجا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ آپ یہ دیکھیے، میں اس حوالہ کو پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، زبور 91، جس میں بہت خوبصورت ایک وعدہ ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے، اور یہ بات اس کے اوپر صادر ہوتی ہے۔ زبور 91 اس کی ورس 14، کیونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا، میں اسے عمر کی درازی سے اسودہ کروں گا، اور آخری بات، اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا، آمین۔ اور اپنی نجات اسے کیا کروں گا؟ کیونکہ اس نے مجھ سے کیا کیا ہے؟ آمین۔ اس نے میرا نام پہچانا ہے، اس نے میرے ساتھ دل لگایا ہے، اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ میں کیا کروں گا؟ اسے چھڑاؤں گا، اسے سرفراز کروں گا، وہ مجھے پکارے گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے جواب دوں گا، اسے عزت بخشوں گا، اسے عمر کی درازی بخشوں گا، اور پھر اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نجات اس شخص کو ملی ہے۔ یہ آخری بات، جو آخری وعدہ ہے کہ میں اسے کیا کروں گا؟ اسے نجات جو ہے وہ دوں گا۔ اور یہ اعمال 10ویں باب میں آپ اس شخص کی زندگی سے دیکھ سکتے ہیں، وہ دیندار تھا، آمین۔ وہ کیا تھا؟ وہ دیندار تھا، اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا، اور پھر وہ یہودیوں کو بہت خیرات دیتا، اور ہر وقت خدا سے کیا کرتا تھا؟ دعا کرتا تھا، میں اسے کیا کروں گا؟ اسے چھڑاؤں گا، میں اپنی نجات اسے کیا کروں گا؟ دکھاؤں گا، کیونکہ یہ دیندار ہے، آمین۔ اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا، اور سارے گھرانے سمیت میں اس کی وہ ہے، اس کی بیوی ہے، اور اس کے کیا ہے؟ بچے ہیں۔ آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب پترس اس کے گھر میں آیا، لکھا ہے
کہ 24ویں آیت میں وہ دوسرے روز کیسریا میں داخل ہوئے اور کرنیلیس اپنے رشتہ داروں اور دلی دوستوں کو جمع کر کے ان کی راہ دیکھ رہا تھا. آمین. کس طریقے کے ساتھ اپنے رشتہ داروں اور دلی دوستوں کو جمع کر کے اس کا انتظار کر رہا ہے. حقیقت میں غور سے سنیے جو بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. یہ دیندار ہے، خدا سے اپنے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا، پھر یہودیوں کو خیرات دیتا تھا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا. اور یہ تیسرے پہر کی یہ دعا کر رہا تھا. کون سے پہر کی؟ یہ تیسرے پہر کی یہ دعا کر رہا تھا. تقریباً 3 بجے کی یہ دعا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، 6 سے 9، 9 سے 12 اور 12 سے 3. ٹھیک ہے، 2 پہر اور پھر تیسرا پہر. جو تیسرے پہر یہ دعا کر رہا تھا. تو گویا ہر پہر میں وہ کیا کرتا تھا؟ اگر کہا گیا ہے ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا، تو گویا اس کا مطلب ہے ہر پہر میں جو ہے وہ خدا کو یاد کرتا تھا اور اس سے دعا کرتا تھا. آمین. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ اسرائیل میں ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا کا نام لے کر وہ دعا کیا کرتے تھے. تو گویا دیکھیں کہ اسی طریقے کے ساتھ یہ 3 ٹائم پریئر کی جاتی ہے. 7 ٹائم خدا ان کی ستائش کرتا ہے اس کے حکموں، اس کی شہادتوں کے باعث. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس سبب سے یہ شخص صوبہ دار ہے، ایک اچھی پوسٹ کا مالک ہے، ایک اچھی پوسٹ پر تھا، اور جو ہے پورے طور پر پورے دل کے ساتھ جو ہے خدا کے ساتھ جڑا ہوا تھا. اور اندازہ یہ کیجئے ان ساری باتوں کو دیکھ کر اعمال کی کتاب میں وہ سٹیپ جو ہے یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے جو آپ کو جو ہے وہ بائبل کے اندر شاید ہی کم ملے گا. ٹھیک ہے، اور جس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں، خدا کے دل کے بارے میں، کہ خدا کن باتوں کے اوپر دھیان کرتا ہے، یا خدا کن باتوں کے اوپر سوچتا ہے، یا وہ کن چیزوں کا جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر مشاہدہ کرتا ہے. وہ خداوند دینداری کو دیکھتا ہے، خدا ڈر کو دیکھتا ہے، خدا جو ہے خیرات کو اس کی دیکھتا ہے اور اس کی دعاؤں کو دیکھتا ہے. اور 2 باتیں جو خداوند کی فرشتہ نے اس سے کی ہیں وہ کیا ہے؟ تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور وہ کیا ہوئی ہیں؟ پہنچی ہیں. 2 باتیں ہیں، تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور یہ پہنچی ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ 2 باتوں کے اوپر خداوند نے جس کو دیکھا ہے، یہ کس طرح دعا کرتا ہے اور کس نیت سے خیرات کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تو جو ہے نرسنگا پھونک کر جو ہے وہ اعلان کیا جاتا تھا. فریسی خیرات دیتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ جو ہے وہ نرسنگا پھونکا جاتا تھا کہ جی فلانے نے کیا کیا ہے؟ خیرات دی ہے. ان کا ذکر کیا جاتا تھا. اس لیے کرائسٹ نے کہا کہ اگر تیرا ہاتھ جو ہے تیرا دینا ہاتھ دیتا ہے تو بائیں کو نہ پتہ چلے، یعنی دوسرے ہاتھ کو معلوم نہ پڑے کہ تو نے کیا دیا ہے. اسی بات سے اندازہ لگائیے کہ یہ جو ہے کس طریقے سے خیرات کرتا تھا، اور جو ہے صرف خیرات ہی نہیں کرتا بلکہ بہت خیرات وہ کرتا تھا. آمین. یہ ٹائٹ کی بات نہیں، یہ اس کی جو ہے دل کی بات ہے. خیرات دل کے، اس کا تعلق جو ہے دل کے ساتھ ہے. ٹائٹ یہ خدا کا حکم ہے. خیرات آپ کے دل کو پیش کرتی ہے کہ آپ کے اندر جو ہے کس طرح کا ہارٹ ہے، آپ کے اندر کس قدر نرمی پائی جاتی ہے، کس طور پر جو ہے آپ کسی کو دیکھ کر جو ہے وہ موم ہو جاتے ہیں. تو کوئی گویا آپ اس کے دونوں پہلوؤں کو وہ دیکھ سکتے ہیں. خدا کے معنی میں اس کا پہلو کیسا ہے اور انسانوں کی طرف اس کا کیا وہ پہلو ہے. آمین. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے کے ساتھ وہ خدا کے حضور میں وہ مقبول ہو رہا ہے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ خدا ہے جو حکم کرتا ہے کسی بھی بات کے لیے. جو چیز اس نے ٹھہرانی ہے، جس چیز کا اسے حکم کرنا ہے، کسی چیز کو اس نے جو ہے وہ ممنوع کرانا ہے اور کسی کو غیر ممنوع کرانا ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے.
अगर एक वक्त में उसने शरीयत में कहा कि ये नहीं खाना, लेकिन देखिए कि जब बात आई दीनदारी की, एक ऐसे शख्स की कि इसको निजात देनी है, इसको जो है वो इसको करीब लाना है, इसे शामिल करना है, तो उसे सारे जो उसे चीजें रोकती हैं उसको क्या कर दिया है, वो पीछे हटा दिया है। आमीन। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर वो काम हुआ है, जो है इसकी दीनदारी ने, इसकी दुआओं ने, इसकी खिरायत ने, और इसके साथ खुदा के साथ डरना ने, कि जो जिस तौर पर खुदा से डर रहा है, खुदा को एक बड़ा स्टेप उठाना पड़ रहा है। वो क्या स्टेप था? पतरस के पास जो है खुदावन जो है वो दोपहर का टाइम था, पतरस को भूख लगी, वो कोठे पर चढ़ गया और वो बेखुद हो गया। जब वो बेखुद हुआ तो उसने एक चादर को देखा, ठीक है, एक चादर चीज, बड़ी चादर की मानन चारों कोनों से लटकती हुई जमीन की तरफ उतर रही थी, जिसमें जमीन के क्या थे, सब किस्म के छुपाए थे और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे थे। और उससे आवाज आई, क्या आवाज आई? ऐ पतरस उठ और ज़िबा कर और खा। पतरस क्या कहने लगा? ऐ खुदावन हरगिज नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज नहीं खाई। उसको मालूम है मैं ऐसा करता नहीं। और वो आवाज क्या आती है? फिर दूसरी बार उसे आवाज आई कि जिनको खुदा ने पाक ठहराया है तो इन्हें हराम ना कहे। 3 बार ऐसा ही हुआ और फिर वो चीज आसमान पर क्या कर ली गई है? उठा ली गई है। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि खुदा किस तरीके के साथ जो है ऐसे लोगों को जो दीनदार हैं, ऐसे लोग जो खुदा से डरते हैं और उससे दुआएं करते हैं और वो क्या करते हैं, जो है उसको हर वक्त जो है उसके हुजूर में झुके रहते हैं, खिरायत करते हैं, उनके लिए किस तरीके के साथ जो है वो बर्ताव कर रहा है। हम खुदावंद कहता है जिसको मैंने पाक ठहराया है तू उसे क्यों जो हराम कहता है? तू उसे तू क्यों जो है वो नापाक कहता है? तुझे किसने जुर्रत की है कि तू ऐसा कर? पतरस इन्हीं बातों को सोच रहा था। वो नीचे उतर आया और अभी आ ही रहा था तो करनीलियस के वो आदमी जिसको उन्होंने भेजा था वो जो है उनके पास आ पहुंचे और वो जो है खुदावन रूहुल कुदस ने कहा मैंने इन लोगों को जब वो तेरे पास भेजा है बेखटक क्या कर इनके साथ हो ले, क्योंकि मैंने क्या किया है, इनको भेजा है। चनाचे पतरस को जब इसके घर में उतरा तो ये इस बात समझ आई और वो क्या कहने लगा? उसने कहा तुम तो जानते हो कि यहूदी को गैर वाले कौम वाले से सोबत रखना, जो उसके यहाँ जाना नाजायज है, मगर खुदा ने मुझ पर जाहिर किया कि मैं किसी आदमी को नाजिस या नापाक ना कहूं। ठीक है, नाजिस नापाक ना कहूं। इसलिए जब मैं बुलाया गया तो बेउज़र चला आया हूं। आमीन। तो आप ये देखिए कि किस तरीके के साथ खुदा हडल्स को दूर करता है, कौमों को मिलाने के लिए, जो है उम्मतों को मिलाने के लिए, जो है जिंदगियों को मिलाने के लिए। इसलिए अगर कोई शख्स ये सोचता है, गौर से सुनिए, कि जो है मेरी जिंदगी में रुकावटें हैं, आप जो है कर्नेलियस के खानदान के अंदर ये देख सकते हैं, दुनिया के अंदर जो एक बड़ी रुकावट जो है वो बहुत बड़ी रुकावट थी। खुदा ने जो है उसको भी क्या कर दिया, साइड में कर दिया ताकि जो है ये भी शामिल हो जाए। आमीन। वो सारी उम्मतों कौमों को जो है वो खुशखबरी देता है कि शामिल हो जाओ। आमीन। कोई हड़ल नहीं है, कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई जो है रुकावट नहीं है। जो उससे प्यार करते हैं जो है वो उनको पूरी पूरी निजात दे सकता है। और इसलिए पतरस ने कहा है खुदा किसी का तरफदार नहीं बल्कि हर कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है वो उसको पसंद आता है। आमीन। यह आदमी है जो रोकता है, यह आदमी है जो नजिस या नापाक कहता है, लेकिन खुदा कहता जिसको मैंने पाक ठहराया है तो उसे क्या कर, हराम ना कह। और उसके पास जो है रील चादर खड़ी कर ले आया कि इसको जो है ज़िबा कर और क्या कर जो है वो खा। कह रहा मैं कभी नहीं, ये हराम मैंने कभी खाया नहीं है, मैं कैसे हराम खाऊंगा? आज इसे हराम खिलाने के लिए भेज रहा है। आमीन। ताकि जो है वो
कह सके कि खुदा किस तरीके के साथ जो है वो बर्ताव करता है। जो दीनदार है, जो खुदा से डरता है, जो खिरायत देता है और जो उससे दुआएं करता है, खुदा उनके लिए किन किन रास्तों से किस किस तरीके का इस्तेमाल करता है, आप यहां पर देख सकते हैं। आमीन। बड़ा रास्ता उसने चूज किया है और उसने जो है जहां पर पीछे जो है वो कहा था कि ये खाना और ये नहीं खाना, और ममनू कर दिया बहुत सारी चीजों को, लेकिन जब गैर कौमों को वो शामिल कर रहा है तो उनको कह रहा है जिनको मैंने पाक ठहराया है उसे तू क्या कर, हराम न कह। ये खुदा का तरीकाकार है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा की बादशाही खाने पीने के ऊपर मौकूफ नहीं है, बल्कि रूहुल कुदस की खुशी और मिलाप की ऊपर जो ये मौकूफ है। आज मिलाप होने जा रहा था। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जो शख्स जो है उसे दुआ करता है, जो उसे डरता है, जो दीनदार है और जो खिरायत देता है, वो ये नहीं कह सकता कि कोई रुकावट है, वो ये नहीं कह सकता कि कोई मुश्किल है। आमीन। और खुदा उनकी मुश्किलों को क्या करता है, बोलिए, आसान कर देता है, और उनकी तकलीफों को जब वो दूर कर देता है। याद रखिए, खुदा जो है यहां पर आप ये देखिए कि किस तरीके के साथ जो है इसको निजात मिली है। उसे कहा पतरस को बुला, वो तुझसे कलाम करेगा। और खूबसूरत बात है ये पतरस जो है ये कर्नेलियस की खूबसूरत बात पता क्या है, अब हम सब खुदा के हुजूर हाजिर हैं ताकि जो कुछ खुदा ने तुझे फरमाया है उसे सुने। आमीन। हम क्या हैं, हाजिर हैं। हम सब खुदा के हुजूर हाजिर हैं। काश ये हर एक शख्स के पल्ले बात पड़ जाए और वो क्या कहा करे, हम खुदा के, अब हम सब खुदा के हुजूर हाजिर हैं ताकि जो कुछ खुदा ने तुझसे फरमाया है उसे सुने। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और ये काश ये सब हम पढ़े इस आयत को, ये 10वां बाब की 33वीं आयत में। पासो सीधा मैंने तेरे पास आदमी भेजे और तूने खूब किया जो आ गया। अब हम सब खुदा के हुजूर हाजिर हैं ताकि जो कुछ खुदावन ने तुझसे फरमाया है उसे सुने। आमीन। इस किस तरीके के साथ खुदा ने जो है नजात का जो है काम एक खानदान के अंदर करने का जो है इरादा बांधा है, और जब खुदा ने इस खानदान के अंदर या निजात का काम करने का इरादा बांधा तो वो तमाम रुकावटें दूर कर दी। आमीन। वो तमाम चीजें जो है ये उसकी निजात के दरमियान में आती थी वो सब क्या कर दी हैं, दूर कर दी। पतरस को बुलाया जो कहता था कि मैं हराम नहीं खाता। पतरस को कहा मैं इसे ज़िबा नहीं कर सकता, मुझे करायत आती है, मुझे जो है ये मकरू है, ये शामिल नहीं हो सकता। और उसने ये कह भी दिया, यहूदी गैर कौम वालों से सोबत नहीं रखते या उनके यहाँ उनका जाना नाजायज है, लेकिन आज खुदा ने क्या कर दिया है, जायज कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आज यह पतरस का या कर्नेलियस के घर में आना इस बात की गवाही देता है कि खुदा किस तरीके के साथ जायज करता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अगर हम दुआएं कर रहे हैं, अगर हम उसके हुजूर में डरते हैं और उसके हुजूर में यह खिरायत भी करते हैं और दीनदारी की जिंदगी बसर करते हैं और उससे बहुत डरते हैं, तो याद रखिए, याद रखिए, जिस चीज की आपको नीड है, जिस चीज की आपकी जरूरत है, वो होकर रहेगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये होकर रहेगी, कोई रुकावट नहीं रहेगी। आमीन। इसकी निजात के दरमियान में जो है वो जो हराम हलाल का जब वो मसला था, इसकी बरकत के दरमियान में, इसकी जिंदगी के दरमियान में, इसके घराने की बरकत और इसकी जो है निजात के दरमियान में ये रुकावट थी। और खुदा ने जो है पतरस को ये वाज़ेह कर दिया, ये रुकावट जो है नहीं बनने दूंगा मैं। जो शख्स मुझसे डरता है, जो मेरे हुजूर दीनदारी की जिंदगी बसर करता है और जो मेरे हुजूर में दुआएं करता है, मैं रुकावट को नहीं रहने दूंगा। आमीन। मैं रुकावट को
रुकावट नहीं होने दूंगा। अजीज बहनों भाइयों, अगर हम दुआएं कर रहे हैं, अगर हम जो है खिरायत भी कर रहे हैं, अगर हम जो है वो खुदा से डरते हैं, कौन सी रुकावटें हैं बोलिए? Praise the Lord. फरिश्ता उसके पास आ गया। तेरी दुआएं और खिरायत की यादगारी यह हो चुकी है, यादगारी के लिए खुदा के हुजूर पहुंची है, तेरी दुआएं पहुंची है। और इसकी दुआओं में मैं समझ सकता हूं, और इसका निजात पाना और इसका रूहुल कुद्दुस से मामूर हो जाना इस बात की गवाही दे रहा है कि यह शख्स जो है इसके अंदर जो है खुदा की निजात को पाने का, यीशु मसीह को पाने का कितना जो है वो शौक था, वो किस कदर जो है वो इसकी आरज़ू रखता था कि क्राइस्ट मुझे मिल जाए, मैं जो है मसीह को पालूं, मैं मसीह को देख लूं, मैं मसीह को जान लूं, मैं उसकी खुरबत में आ जाऊं, मैं उसकी हुजूरी में आ जाऊं और मैं मसीह बन जाऊं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और रूहुल कुद्दुस की बख्शिश को वो हासिल कर सकूं। और ये पहला मौका है कि ये शख्स जो है बगैर बपतिस्मा के, या पानी के बपतिस्मे के बगैर रूहुल कुद्दुस से भर गया। वो कलाम सुनते सुनते रूहुल कुद्दुस से वो भर गया। इसके अंदर आग लगी हुई थी। उसकी दुआ में ये बात जो गहरी थी कि ऐ खुदावन मुझे अपनी निजात दे। आमीन। तेरी निजात दे शौक विच हुंदी बेहोश मेरी जान। प्रेज़ द लॉर्ड। ये इस तरीके के साथ अपनी दुआओं को उसके हुजूर में वो बयान करता होगा कि तेरी निजात में मेरी जो है वो जान जो है वो बेताब है, मुझे अपनी निजात दे। हर दुआ के अंदर सुबह दुआ करता तो क्या करता, मेरी जो है रूह, मेरी जान की निजात की क्या है वो बेताब है। और दोपहर को जब वो दुआ करता, मेरी रूह, मेरी जान की निजात की क्या है वो बेताब है। वो दोपहर को दुआ करता तो क्या कहता, मेरी जान तेरी निजात की क्या है बोलिए बेताब है। आपकी दुआ का क्या जो है वो सब्जेक्ट है। आप कहेंगे कि मैं तो निजात याफ्ता हूं, मैं तो मसीह हूं, मैं दीनदार हूं, और जो है मैं देखता हूं कि मेरी दुआएं, चंद दुआओं के अंदर रुकावटें आ रही हैं। अजीज बहनों भाइयों, यह मुसलसल जब वो दुआ करते रहे, ये हर वक्त खुदा से दुआ करता था। वो अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था। वो दीनदार था। He was godly, hallelujah। वो बहुत खिरायत वो देता था। उसने अपना तन मन धन जो है वो खुदा के कामों के लिए निछावर किया हुआ था। मैं किसी न किसी तरीके से जब वो खुदा को पालूं, मैं खुदा को हासिल कर लूं, मैं खुदा के करीब आ जाऊं। खिरायत देता हूं तो शायद मैं उसके करीब आ जाऊं, मैं दुआ करूं तो उसके करीब आ जाऊं। मैं अपने घराने समेत डर रहा हूं और उसके हुक्म के अंदर रहता हूं ताकि मैं क्या कर सकूं, निजात पा जाऊं। हालेलुया। इसी तरह जो है यही तरीका हर उस शख्स की जिंदगी के अंदर काम कर सकता है जो कुछ वो चाहता है। अगर इसके दरमियान जो है रुकावट को खुदा दूर कर सकता है तो आपकी हर एक बात में जो आप ये चाहते हैं, जो आपकी दुआओं का सब्जेक्ट है, वो जो है वो रुकावटों को दूर कर सकता है। आमीन। ये एक बड़ी रुकावट थी। पतरस मूव नहीं कर रहा था, पतरस वहां पर स्टक था। खुदा ने जो है अपने तरीके के साथ जो है किस तौर पर जो तरमीम कर देता है, किस तौर पर चेंज कर देता है, किस तौर पर जो है तब्दीली वो पैदा कर देता है। यही है हमारा खुदा, ये किस तरीके के साथ वो इंसानों को, लोगों को जो है अपने करीब जो है वो ले आता है। इसलिए खुदा निजात देना चाहता है। तूने मेरा नाम पहचाना है, मैं तुझे क्या करूंगा, सरफराज करूंगा। तूने अपना दिल में जब मेरे साथ लगाया है, मैं अपनी निजात तुझे दिखाऊंगा। तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे क्या करूंगा, जवाब दूंगा। आमीन। अगर हमने वाकई हुआ अपना दिल उसके साथ लगा लिया है और हमने उसका नाम पहचानना शुरू कर दिया हुआ है तो याद रखिए निजात भी मिलेगी और मुसीबत में वो साथ भी रहेगा, और जब पुकारेंगे तो जवाब भी वो देगा। और ऐसा ही इस शख्स के साथ हुआ है। खुदा ने जो है इसकी दुआओं का जवाब दिया है। यादगारी उसके हुजूर में हुई है कि कॉर्नेलियस
की दुआएं सुनी गई हैं, आसमान के ऊपर यादगारी हुई है कि कुरनेलियस तेरी दुआएं सुन ली गई हैं, कुरनेलियस तेरी खरायत जो तू देता है ये जो है वो कबूल हो चुकी है। फरिश्ता भेजकर खुदा ने कहा बुला ले जो है वो पतरस को, वो तुझसे ऐसी बातें करेगा जिसे तू निजात पा जाएगा। हालेलुया। और उसने कहा हम हाजिर हैं, वो बात सुना जो खुदा ने जो है वो हमारे लिए कही है, वो कलाम सुना जो खुदा ने तुझसे फरमाया है, हम उसे सुनने के लिए क्या है वो बेताब है, बेचैन है। आमीन। खुदा जो है इस तरीके के साथ उन तमाम जिंदगियों के साथ बर्ताव और सलूक करता है जो इस तरीके के साथ खुदा से डरते हैं, जिस तौर पर अपनी जिंदगी बसर करते हैं। ये शख्स यहूदी नहीं है, ये शख्स जो है अतलियानी जो है ये गैर कौम का शख्स है, लेकिन किस तरीके के साथ खुदा से मोहब्बत रखता है। ये जो है हर मसीही को इनकरेज कर रहा है, ये हर एक मसीही को की हौसला अफजाई कर रहा है और उसको जो है ये उसको जोश दिलाता है कि खुदा ने मेरे लिए यह किस तरीके के साथ राह निकाली है। आमीन। ऐ मसीही देख मेरी निजात के लिए उसने मेरे लिए कैसी राह निकाली है। ये नामुमकिन सा लगता था, मैं तो दुआएं करता ही चला गया, मैं खिरायत देता चला गया, मैं अपने गिराने के समय डरता रहा लेकिन निजात मुझसे दूर थी। मैं बेशक दीनदारी वाली जिंदगी बसर करता था लेकिन निजात मुझसे दूर थी, मसीह की बातें मुझसे दूर थी। मैं मसीह को जान नहीं पा रहा था, ना मैं उसकी मसलूबियत को समझता था, ना उसके प्लान को उसको समझता था, ना उसके जीतने को समझता था। कोई तो हो जो मुझे आकर बता दे ऐ मसीही मेरे दरमियान में रुकावट थी, मैं यूनानी हूं, मैं गैर कौम वाला हूं, मेरे पास कैसे निजात आ सकती है। खुदा ने इस सारी बातों को देखकर जो है उसकी सारी रुकावट को दूर कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। ऐ मसीही मेरे लिए उससे रुकावटों को दूर कर दिया है, तू भी ऐसा कर। आमीन। तेरे दरमियान में जो है उसको पाने, उसको हासिल करने और उसमें बढ़ने, उसमें तरक्की करने में कौन सी रुकावटें आ रही हैं, अगर तू समझता रुकावटें हैं, याद रख अगर तू उसके साथ चलता रहता है जो है मुस्तकिल मजाजी के साथ, जब बराबर उसके साथ चलता रहेगा वो तेरी सारी रुकावटों को दूर कर देगा। आमीन। वो तेरी सारी रुकावटों को तुझसे वो दूर कर देगा और तेरे साथ वो बर्ताव करेगा जैसा बर्ताव उसने मेरे साथ किया है। आमीन। मेरे साथ कैसा बर्ताव किया, मुझे उसने अपनी निजात दे दी, मुझे उसने अपना रूहुल कुदस जो है वो दे दिया। पतरस कहने लगा कि अगर जो है जब इस तरह से खुदा जो है रूहुल कुदस इनको बख्शता है तो मैं कौन होता हूँ जो इनको पानी से बपतिस्मा ना दूं। जब खुदा ही ये सारे काम कर रहा है तो मैं कौन होता हूँ। आमीन। पतरस कहने लगा, पतरस की बात सुने, यह 47वीं आयत में है बल्कि 46वीं आयत में कहता है, 44वीं आयत में पढ़ना चाहता हूँ। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूहुल कुदस उन सब पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे, और पतरस के साथ जितने मख्तून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूहुल कुदस की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्हें तरह तरह की ज़बानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। पतरस ने जवाब दिया, क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाएं जिन्होंने हमारी तरह रूहुल कुदस पाया, और उसने हुक्म दिया कि इन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। इस पर उन्होंने उससे दरखास्त की कि चंद रोज हमारे पास रहे। आमीन। उसने क्या कहा है कि हम कौन है, कोई है जो इनको रोक सकता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए? कोई है? जब खुदा ये सारे काम उन लोगों के लिए कर रहा है, याद रखिए जो दीनदार है, जो उससे डरते हैं, जो खिरायत करते हैं और जो उससे हर वक्त दुआएं करते रहते हैं, उनको उनके लिए खुदा जो है ऐसी चश्मे जारी कर देता है, ऐसे उनके लिए हाथ बढ़ा देता है, और खुदा नहीं रुकता उनको छूने, उनको बरकत देने से। तो इंसान कौन होता है? इसलिए पतरस ने भी जान लिया कि कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जो हम काम कर सकते हैं। हम तो पानी का बपतिस्मा देने वाले हैं ना,
हमारे पास ये इख्तियार है कि हम पानी का बपतिस्मा इनको दें। जब खुदा ये सारे काम कर रहा है तो हम कौन होते हैं इनको पानी का बपतिस्मा देने से? आमीन। इसलिए अजीज बहन भाइयों, मैं आज आपको उभारना चाहता हूं। अगर आप जो है हर वक्त उससे दुआ कर रहे हैं और समझते हैं कि कुछ लेट है, मत जो है खौफ खाइए या मत परेशान हो। अगर दीनदारी की जिंदगी जो है बड़े अरसे से बसर कर रहे हैं, मत खौफ खाइए या मत परेशान हो। अगर आप अपने सारे घराने समेत खुदा से डरते हैं, या आप खैरात भी कर रहे हैं, या आप टाइट भी दे रहे हैं, या आप डोनेशंस भी दे रहे हैं उसके हुजूर में, या उसे दुआएं कर रहे हैं, ये सारे काम जो है ये शख्स जो है ये मसीहों का काम है जो ये कर रहा था। और जब ये कर रहा था तो खुदा ने उसके लिए वो कुछ किया जो वो सोच भी नहीं सकता था। आमीन। बल्कि ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट के अंदर जो है, जो आप जो है एक बड़ा फर्क जो यहां पर खुदा ने दिखा दिया है, ये जो है ये बड़ा ही वंडरफुल है। अगर आप कोई शख्स इस बात को समझे कि किस तरीके के साथ एक शख्स को निजात देने के लिए खुदा कितना बड़ा स्टेप उठा रहा है। आमीन। खुदा कहां तक जा सकता है आप जो है ईमान 10वें बाब में देख सकते हैं। खुदा किस हद तक गया है। मुझे तो मालूम है कि यीशु मसीह जो है सलीब पर जो बाप ने कहां किस हद तक चला गया है, लेकिन यहां पर भी उसकी हद ही खत्म हो गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये निजात जो मेरे बेटे यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर काम किया है, ये खाने पीने की चीजें जो किस तरह किसी को रोक सकती है कि ये निजात ना पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जिनकी दुआओं के अंदर हर वक्त मसीह रहता हो, जिनकी दुआओं के अंदर उसका चेहरा रहता हो कि मैं उसका दीदार हासिल करूं, वो उनके लिए कैसे बड़े काम कर सकता है। अजीज बहन भाइयों, दिलेरी पकड़िए, अपनी दुआओं को जोश दीजिए। आमीन। अपनी खैरात को जोश दीजिए। अब जो है डरने को, खुदा से डरने को, अपने घराने समेत डरने को जो जोश दीजिए। अपनी दीनदारी को जोश दीजिए। आमीन। और जो है बड़ी मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने खुदा के साथ वफादार रहे, जो हर एक रुकावट को दूर करने की कुव्वत रखता है, जो ममनू करना गैर ममनू करना जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो राहों को निकालना जानता है, वो तरीके, वो ये कायदे, वो असूल पैदा कर देगा। आमीन। वो तरीके निकालेगा, वो राहें निकालेगा जो हमारी सोचों, हमारे ख्यालों और हमारे इरादों में भी नहीं है। आप क्या दुआ कर रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं? आप खुदा के हुजूर में किस तरीके के साथ उसके हुजूर में आते हैं? वो अगर जो है इसको कह सकता है, वो आपको भी कहता है, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हुजूर पहुंची हैं। आइए दुआ करें।